Good morning, dear student. This is Mandeep Sani, and today I'm here with a new AV assignment. In this AV assignment, we will discuss our poem. The name of the poem is Mistake. And before starts our poem, I'm going to start with the pledge first. I am Mandeep Sani. Commit to be vigilant and bear in mind at all time the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash your hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Alright, so now I'm going to start with the reading first. In this poem you will learn about a girl, and she is continuously getting problem in learning table. The name of the girl is Dorothy. Okay, so let's start. I studied my table over and backward and forward too. I couldn't remember 6 times 9s and I didn't know what to do. मैंने अपने टेबल, डॉरथी क्या कह रही है कि मैंने अपने टेबल बहुत बार लर्न कर लिए हैं, कभी आगे से पीछे, कभी पीछे से आगे. बट आई couldn't remember 6 times 9s, पर मुझे ये पता नहीं चल रहा कि 6 into 9 is equal to what, कि 6 into 9 is equal to कितने होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. एंड आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना चाहिए टेबल को लर्न करने के लिए कि 6 into 9 is equal to कितने होते हैं. ऑलराइट, till my sister told me to play with my doll and not to bother my head. तब मेरी सिस्टर ने कहा कि मेरी डॉल के साथ खेलना स्टार्ट करो. नॉट टू बॉदर माई हेड, मेरा सर मत खाओ. बॉदर मीन्स तंग करना. ओके, मेरी सिस्टर ने कहा मेरी डॉल के साथ खेलना स्टार्ट करो डॉरथी, और मेरा सिर मत खाओ. इफ़ यू कॉल हर 54 फॉर अ वाइल यू विल लर्न इट बाय हार्ट, शी सेड. अगर तुम मेरी डॉल को 54 के नेम से बुलाना शुरू कर दो तब तुमको लर्न हो जाएगा कि 6 into 9 is equal to 54 होते हैं. तो इसके लिए तुम्हें मेरी डॉल को 54 के नेम से बुलाना पड़ेगा. ओके, we were on the page number 11, so I'm going to proceed with the page number 12 now. Okay, it's page number 12 of a book. So I took my favorite Mary in, though I thought it was a dreadful shame to such a perfectly lovely child with a perfectly horrible name. Its apostrophe T was, it was. Okay, we will pronounce it here T-was. Okay, PER per F is effect, TLY telly, that is perfectly. HORRI horry, BLE bell, it's horrible. Okay, सो डॉरथी कह रही है कि मैं इस डॉल को मैरी एन कहती थी बिकॉज मुझे मैरी एन नेम इस डॉल का बहुत पसंद था. अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस डॉल को 54 के नेम से बुलाऊं. ये इतनी अच्छी डॉल है, इतनी क्यूट डॉल है, अच्छा नहीं लग रहा, इसका नेम कितना डरावना लग रहा है कि मैं इसको 54 के नेम से बुलाऊं. इट इज़ सच ए हॉरिबल नेम. ओके, and I called her with my little 54 100 times till I knew the answer of 6 times 9 as well as the answer of 2 times 2. तो मुझे टेबल भी लर्न करने हैं, तो इसलिए फिर क्या होगा, तो मुझे इस डॉल को 54 के नेम से तो बुलाना ही पड़ेगा. तो मैंने 100 ऑफ टाइम्स लर्न करा कि 6 times 9 is equal to 54, और इस डॉल का नेम भी क्या है, 54. Okay, now we will move towards the next one. Next day, Elizabeth Wigglesworth, ELIZABETH, Beth, it's Elizabeth, WIGGG, Wig, LES, less, Wigless, WORTH, it's Elizabeth Wigglesworth. Next day, Elizabeth Wigglesworth, who always acted so proud. नेक्स्ट दिन क्या होता है, एलिजाबेथ विगलिसवोर्थ जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउडी गर्ल समझती है, बहुत ज़्यादा घमंड करती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट गर्ल समझती है, सेड 6 times 9 is 52.
तो वो कह रही है कि 6 टाइम 9 कितने होते हैं, 52 होते हैं। 6 टाइम 9 इज इक्वल टू 52 होते हैं। एंड आई नियरली लाफ्ड आउट लाउड, तो मैं बस हंसने ही वाली थी। डॉरथी ने कहा कि मेरी क्लास में एक गर्ल है, उसका नाम एलिजाबेथ बिगलिसवर्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी है, वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, और वो बोल रही है कि 6 टाइम 9 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो मेरी बस हंसी निकलने ही वाली थी। आई नियरली लाफ्ड आउट लाउड बट आई विश्ड आई हैडंट व्हेन टीचर सेड नाउ डॉरथी टेल इफ यू कैन। ओके, टेल आई विश्ड but I wished I hadn't when the teacher said Dorothy tell if you can। मुझे आंसर पता था और मैं बस टीचर का ही वेट कर रही थी कि टीचर मुझे कहें डॉरथी अभी आप बताओ आंसर, सही आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, व्हाट इज़ द राइट आंसर, डॉरथी आप बताओ। तो मैं बस टीचर को बताने वाली थी। मैं सोच रही थी कि टीचर मुझे कहें कि डॉरथी अगर आपको पता है तो आप आंसर बता सकती हैं, इट इज़ योर विश। Okay, for I thought of my doll and sake alive I answered Mary Ann। तब मैंने अपनी डॉल के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर ने कहा था कि अगर तुम मेरी डॉल को 54 के नेम से बुलाओगे तो तुम्हें लर्न हो जाएगा दैट 6 टाइम 9 इज इक्वल टू 54। तब टीचर ने मुझे कहा अभी आंसर दो, 6 टाइम 9 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 6 टाइम 9 इज इक्वल टू वॉट। तब मैंने अपनी डॉल के बारे में सोचा, तो मैंने आंसर दिया 6 टाइम 9 इज इक्वल टू मैरी एन। इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो डॉरथी थी उसको नहीं बोल रहा था कि उसकी जो डॉल है उसका नेम मैरी एन है, उसको नहीं वो अपनी डॉल को इतने डरावने नेम से बुलाने में अच्छा फील नहीं कर रही थी। तब उसको जब टीचर ने पूछा तो 6 टाइम 9 इज इक्वल टू कितने होते हैं, देन शी जस्ट थॉट अबाउट हर डॉल, तो उसने अपनी डॉल के बारे में सोचा। शी आंसर्ड मैरी एन, 6 टाइम 9 इज इक्वल टू मैरी एन। तो एट द लास्ट शी ऑल्सो फॉरगेट द आंसर, लास्ट में फिर वो आंसर फॉरगेट हो गया उसको कि 6 टाइम 9 इज इक्वल टू 54 होते हैं, कि 6 टाइम 9 इज इक्वल टू मैरी एन नहीं होता है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अ बुक वर्क। ओके, I am here on the page number 14, so you all are requested to do this work on your book. You are suggested to do this work on your book. Please don't do this work on your fair notebook. Okay, it's your book work. All right, dear student. So here is the vocabulary. Write the opposite of the words given below. Choose words from the boxes. Okay, here you are seeing some words, and here are also some words you are saying at the left side of the book, and you now have to write the opposite, write the antonym of this word. Okay, opposite word you have to write here. First one is backward, and the opposite of this word is forward. I have taken forward from here. Okay, backward, forward. Okay, little, little means बहुत छोटा, little means छोटा, and huge means बड़ा. I have taken huge from here. Okay, huge means बड़ा, little means छोटा, huge means बड़ा. Number 5 is always. Always means हमेशा, जो always रहे, always रहे, ठीक है, that is always. Always का opposite क्या होगा, never, जो कभी ना होए, never. I have taken never from here. Always जो हमेशा होए, और never जो कभी ना होए. Okay, next one is remember. Remember जो हमें याद रहता है, जो हमें learn रहता है, that is known as remember. Remember का opposite क्या होगा, forget. Okay, remember means याद रहना, forget means भूल जाना. Okay, next one is answer. Answer होता है उत्तर, ठीक है, आंसर होता है उत्तर, तो हम आंसर का ऑपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन. ओके, नंबर 6 इज प्राउड.
प्राउड मीन्स बहुत घमंडी पर्सन होता है, जो जिसको बहुत घमंड होता है, जो बहुत सेल्फिश टाइप का पर्सन होता है, उसे कहते हैं प्राउडी पर्सन, प्राउड पर्सन। ओके, प्राउड का ऑपोजिट क्या होगा? हम्बल। आई हैव टेकन हम्बल फ्रॉम हियर। हम्बल मीन्स शांत स्वभाव का पर्सन होता है जो, ठीक है, शांत, अच्छा, ठीक है। हम्बल इज, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट पर्सन इज़ वेरी हम्बल, वो बहुत शांत अच्छे स्वभाव के पर्सन है, ठीक है। सो आई होप यू हैव enjoyed this AV assignment. Till then, take care, bye bye.